Assalamualaikum class 8. Today we will start a new chapter in Pakistan studies. So open page number 75 in your book. Here's your new chapter, Major Occupations in the World. Now let's read. For several million years after the first people appeared on earth, they probably did everything for themselves or else in small family groups. They hunted animals and gathered leaves, berries, roots, and fruits to eat raw because they did not know how to make fire. When they found out how to make fire, this opened many new things in life. They could cook food, they could harden the points of the spears in hot ashes. Later, they learned how to make rough stone tools and weapons without handles. They also discovered that fire kept wild animals away. They found out how to keep warm by covering themselves with the skins of dead animals. बहुत सालों पहले की बात है कि लोगों को कुछ भी नहीं पता था कि हमें अपने लिए किस तरह से करना है। बहुत टाइम के बाद उन्होंने ये चीज़ डिस्कवर की कि हमें अपने लिए ख़ुद से कुछ अपने लिए करना है। तो उन्होंने कहाँ से शुरू किया? वो खाने पीने के लिए एनिमल्स हंट करते थे और उनका कच्चा गोश्त खाया करते थे। उसके अलावा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कच्चे खाया करते थे क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि फ़ायर किस तरह उन्हें जलानी है। जब उन्होंने इस चीज़ को डिस्कवर कर लिया कि हमें फ़ायर किस तरह जलानी है, हमें आग किस तरह जलानी है, उसके बाद उन्होंने खाना पकाने का भी डिस्कवर किया कि हमें खाना किस तरह पकाना है। उनको ये चीज़ भी आ गई। फिर उसके बाद उसके अलावा वो लोग स्पेयर्स यानी नेज़ों के जो पॉइंट्स होते थे उसको आँख के ऊपर तेज़ किया करते थे, उसको शार्प किया करते थे। उसके अलावा उन्होंने स्टोन्स यानी पत्थर से टूल्स और वेपन्स बनाना शुरू कर दिए। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कवर की कि आँख से वाइल्ड एनिमल्स दूर चले जाते हैं, मतलब दूर भाग जाते हैं, उनके करीब नहीं आएंगे। ठीक है। उसके अलावा उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कवर की कि जो डेड एनिमल्स हैं उनकी स्किन से वो अपनी बॉडी को कवर कर सकते हैं और अपने आप को गर्माइश पहुंचा सकते हैं। And later still, when the families tended to come together in groups, they realized that some people were better at doing certain things than others. Perhaps a man who was a poor hunter who could make stone tools better than the others, or some were better at making skin for wearing. So a system of barter grew up. Perhaps the leg of a deer caught by a good hunter would be exchanged for a बेटर स्टोन एक्स। अच्छा, फिर वो फैमिलीज़ की सूरत में रहने लगे तो उन्होंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि कुछ लोग किसी चीज़ में बेहतर हैं तो कुछ लोग किसी और चीज़ में बेहतर हैं। तो उन्होंने फिर ये चीज़ डिस्कवर कर ली कि जैसे अगर कोई हंटिंग नहीं कर पा रहा तो शायद वो टूल्स वगैरह बनाने में ज़्यादा बेहतर है, तो उन्हें उस चीज़ का काम दे दिया गया। इसी तरह जो हंटिंग में बेहतर है तो उनको हंटिंग का काम दे दिया गया। फिर उन्होंने ये चीज़ भी डिस्कवर की कि जो डियर का जो लेग है, जो हिरन की जो टांग होती है उससे स्टोन एक्स बहुत अच्छा बनाया जा सकता है। These groups at first lived in nomadic hunting camps, but about 10 to 12,000 years ago, some wild grasses and other plants were planted in plots fluffed with pointed sticks, and some grains were domesticated into farmed crops. Thus, people began to live in one place and settlements started becoming more permanent. Sharing work now became more complicated. There were those who could make better pots when pottery was discovered. There were those who could plan ahead and give advice to others. When weaving was invented, there were people who were better at spinning and weaving and making rough clothes. इसी तरह साल गुज़रते रहे और लोगों ने फिर ये चीज़ डिस्कवर करना शुरू कर दी कि कुछ लोग फ्लफ़िंग में अच्छे हैं, कुछ खेती बाड़ी में मतलब अच्छे हैं, उसके अलावा कुछ कहेंगे कि पोट्री वगैरह के वर्क में जो पॉट्स बनाते हैं उस काम में अच्छे हैं, कुछ कपड़े वीविंग में अच्छे हैं। तो इस तरह से काम उनको बांट दिए गए। What other special jobs do you think were needed in the villages? Think not only of people who could make things, but of those who could think
clearly about making and keeping the rules in worship. With the discovery of metals, at first copper, सबसे पहले जो metal discover हुआ वो था copper. There were some who had the secret of smelting the ores and making tools and weapons. There were some who, because they were stronger, braver or more skillful, became leaders. जो ज़्यादा जो है ब्रेव थे, स्ट्रॉन्ग थे और जिनके पास ज़्यादा महारत हासिल जिनको थी, तो उनको लीडर्स बना दिया गया. There were those, often priests, who worked out the rules for the society, all of this with people doing the work they were best suited, or as today trained, for is called division of labor. Today our world is so complicated that the division of labor is absolutely essential. The man who mends our bicycle does not know how to mend our computers, nor does the TV engineer know much about plumbing. The lady who works on a computer does not know how to pull out teeth at the dentist. अच्छा, अब जब जिस तरह जो है काम बांटा गया, तो इस तरह से अब हम अगर देखें कि अगर कोई एक बाईसाइकिल बनाने वाला है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे जो है कंप्यूटर बनाना भी आता हो, या जो टीवी बना रहा है ज़रूरी नहीं है कि उसको प्लम्बर का काम भी आता हो. ठीक है, या कोई लड़की अगर कंप्यूटर चलाना जानती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो जो है आप उसके पास चले जाओ कि आप मेरे अपने टीथ्स दिखाने के लिए कि उसमें जो है एज अ डेंटिस्ट वो वर्क करे, तो ऐसा नहीं है. ऑक्यूपेशन सबके अलग अलग डिवाइड हुए हैं. Occupational group. In our world today, there are 5 main groups of work, and inside each group are scores of different kinds of specialists. जो वर्ल्ड में आज जो है 5 ग्रुप जो है काम के लिहाज से 5 ग्रुप्स हैं, जिनमें जो है डिफरेंट काइंड्स के स्पेशलिस्ट जो है डिवाइड हो चुके हैं. ठीक है, जैसे एग्रीकल्चर, दिस कैन बी डिवाइडेड इनटू दोज हु मेनली ग्रो क्रॉप्स एंड दोज हु रेयर एनिमल्स. एग्रीकल्चर वो डिपार्टमेंट है जहाँ पर जो है क्रॉप्स ग्रो करना यानी खेती बाड़ी करना और रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ये 2 काम होते हैं. फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री आर इंक्लूडेड इन दिस. फिशिंग और फॉरेस्ट्री का काम भी जो है इसी ग्रुप में इंक्लूड होता है. फिर आ जाती है इंडस्ट्री. दोज हु मेक थिंग्स इन फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स, बिल्डर्स, इंजीनियर्स, पीपल हु मेक रोड्स एंड वेरियस फॉर्म्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. इंडस्ट्री के काम में जो आ जाएगा आपके जितनी भी चीज़ें फैक्ट्रीज और वर्कशॉप्स पे बन रही हैं, बिल्डिंग्स हैं, इंजीनियरिंग वर्क है, या रोड्स बिल्ड करना, या किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्ट वगैरह, तो ये सब इंडस्ट्री के वर्क में आ रहा है. Mining and quarrying. Those who obtain coal, metal ores, building rocks, oil and gas from the earth are in this group. कुछ भी मेटल से रिलेटेड जो भी काम है या माइनिंग का काम है, ये सब जो है इस ग्रुप में आता है. Trade and commerce. People who buy and sell. These can be small shops or huge firms which send billions of rupees worth of goods all over the world. Behind all of these are the office workers, the communication people, designers and all the many people who make trade possible. जो बाइंग एंड सेलिंग करते हैं या किसी किस्म का भी ट्रेड जो पॉसिबल बनाते हैं कम्युनिकेशन के थ्रू या किसी भी लिहाज से, तो वो जो है वो सारे जो है इसी ग्रुप में, ट्रेड एंड कॉमर्स के ग्रुप में आते हैं. Service. This is the fast growing area of employment in all countries. Service workers help to make life better for all of the people. सर्विस ग्रुप में तमाम वो एम्प्लॉयमेंट्स आते हैं जो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं. ठीक है, किसी किस्म की भी सर्विस हो सकती है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो, चाहे वो आपके स्कूल्स में हो, चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट में किसी किस्म की कोई भी सर्विस अगर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो इस ग्रुप में आएंगे. Now let's have a look on page number 77. Some examples of people in various professions: lawyer, airline crew, doctor, teacher, sportsman, traffic police. These are the figures 2008 for some Asian countries showing the percentage of workers in 3 occupational groups. एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विस में जो है आपको 2008 के बारे में बता रहे हैं कि कितने परसेंट. पाकिस्तान में 42% एग्रीकल्चर था, 20% इंडस्ट्री, 38% जो है अदर सर्विसेज थे.
इसी तरह से इंडिया में 60% एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री 12% था और सर्विसेज 28%। इसी तरह से इसको जो है 5 कंट्रीज़ में के बारे में इन्होंने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। ओके अच्छा जी, यहाँ पे जो है एक चार्ट बना हुआ है, उस चार्ट के लिहाज से जो है आपको ये जो ग्राफ है उससे शो कर रहे हैं कि क्या जो है कितना मतलब कितने मिलियन के हिसाब से या कितने परसेंट के हिसाब से जो है वर्क पूरे वर्ल्ड में हो रहा है। अगर आप देखें माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग का तो वो 13.84% है, जबकि ट्रेडिंग जो है 14.67% है। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस 1.89%, अदर जो है ये आपका 14.35%। इसी तरह से तमाम बिल्डिंग्स एंड एग्रीकल्चर और अनएम्प्लॉयड कितने हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, ठीक है। Now let's come to page number 79, employment and unemployment. The chart on the facing page shows how the people of Pakistan are employed. ठीक है। Of a total population 2007 of nearly 165 million, 51 millions are employable. This is under 1/3. The remaining 2/3 are too young, too old, ill, or incapable of working, or people fully occupied in running the home. इस चार्ट के थ्रू ये बता रहे हैं कि सिर्फ 1/3 ऑफ पीपल हैं वो सिर्फ एम्प्लॉयड हैं, बाकी सारे जो है 2/3 हैं वो या तो इतने छोटे बच्चे उसमें हैं या तो जो है बहुत ही बुज़ुर्ग हैं जो नहीं कर सकते काम, और जो बीमार हैं उन सबको जो है उन्होंने 2/3 में इन्वॉल्व किया है। ऑन द वर्क फोर्स देयर आर अबाउट 3 million अनएम्प्लॉयड। ऑफ दोज एक्चुअली इन वर्क, एग्रीकल्चर इज़ बाय फार द लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर जो है वो सबसे लार्जेस्ट ऑक्यूपेशन है, टेकिंग अप ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द एम्प्लॉयड पीपल। आधे से ज़्यादा लोग जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड हैं। अदर्स इंक्लूड पुलिस, टीचर, गवर्नमेंट ऑफिशियल एंड सो ऑन। जो अदर्स का डिपार्टमेंट है उसमें पुलिस, टीचर और इसके अलावा जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं वो सब इन्वॉल्व हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP is the amount of money earned by industry, agriculture, mining and service inside a country. GDP वो amount of money होती है जो earn किया गया है industry, agriculture department से, and not including overseas trade. This sum is calculated as the GDP in US dollars. US dollars में इसको calculate किया जाता है. These figures below shows the development of a rich country Japan, a developing country Pakistan and a desperately poor country Nigeria. यहाँ पे जो चार्ट बना हुआ है उसमें एक जो वेल डेवलप्ड रिच कंट्री है जापान उसके बारे में है, जो अभी डेवलपिंग हो रही है यानी पाकिस्तान उसके बारे में है, और एक बहुत ही पुअर कंट्री है नाइजीरिया उसके बारे में एक ये प्रॉपर चार्ट बनाया है जिसमें GDP कैलकुलेट की गई है US डॉलर्स में। उसके बाद लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, पॉपुलेशंस हैं, उसके अलावा इन्फेंट मॉर्टेलिटी है, पीपल वर्किंग इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड सर्विसेज, अदर सर्विसेज हैं। इसके बारे में जो है अगेन परसेंटेज में जो है आपको यहाँ पर बताया गया है इस चार्ट के थ्रू। नाउ लेट्स कम टू पेज नंबर 80, लिटरेसी। वन ऑफ द मेन फैक्टर बिहाइंड द हाई unemployment figure especially in developing countries is a low literacy rate. सबसे मेन फैक्टर जो है अनएम्प्लॉयमेंट का है लो लिटरेसी रेट, ठीक है। दिस चार्ट शोज द परसेंटेज ऑफ लिटरेसी इन द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान फ्रॉम 1991 to 2007। लिटरेसी रेट के पे जो है ये एक परसेंटेज पे चार्ट बनाया गया है जो 1991 से दिखा रहे हैं आपको 2007 तक कितना इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गवर्नमेंट टू नो हाउ मैनी पीपल आर लिटरेट. वाई डू यू थिंक दिस इज़ सो? You who are reading this are obviously literate, but many people in Pakistan are not, especially females. यही होता है कि ज़्यादातर जो है औरतों को जो है औरतें इलिटरेसी का शिकार होती हैं, उन्हें ही जो है ज़्यादातर जो है
पढ़ाई से और इन चीज़ों से दूर रखा जाता है, तो इस वजह से ज़्यादातर तादाद जो है औरतों की ही होती है। इन 1995 पाकिस्तान हैड द लोएस्ट लिटरेसी रेट लिटरेसी लेवल इन एशिया। 1995 में पाकिस्तान का सबसे लोएस्ट लिटरेसी लेवल था एशिया में, अपार्ट फ्रॉम नेपाल। Things have improved in the last 15 years, and the most recent government figures give the overall adult literacy to be about 56.2%. There is also considerable difference between the male and female ratio 62-35. ठीक है, मेल जो लिटरेट मेल्स हैं उनका रेशियो है 62, वाइल फीमेल्स का है 35. This is still a distance to cover. However, at the overall rate in development countries is about 99%. The 1% illiterates are those who have mental or physical problems which mainly prevent them from reading or writing. ज़्यादातर अगर आप जो है डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखें तो 99% लोग जो है लिटरेट होते हैं, लेकिन उसमें सिर्फ एक 1% जो इलिटरेट वाले हैं उनमें उनके साथ या तो मेंटली या तो फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से जो है वो रीडिंग और राइटिंग नहीं कर सकते।